کریں کہ سر نے صرف سائٹ پر ہی کیا آپ کو، جتنے غصے والے وہ ہیں لمحے بھر کو تو ہمیں لگا تھا کہ وہ آپ کو اٹھا کر کسی دوسری دنیا میں ہی پھینک دیں گے۔ وہ اپنی شان میں ہوئی ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو اتنے تھوڑے میں کیسے بخش دیا، ہم سب ابھی تک حیران ہیں۔ اس لڑکی نے اضفا کا آخری شکوہ بھی نہایت ہی سمجھداری سے دور کر دیا تھا، جسے سنتے اضفا کے دل میں پہلی بار حناد محتشم کے حوالے سے خوف پیدا ہوا تھا۔ تو پھر آپ لوگ اتنے ڈراؤنے بندے کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں؟ اضفا اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھاتے خفگی سے بولی تھی، اس بات سے انجان کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک ایک بات اپنے شاندار آفس میں برزبان حناد محتشم تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے سے پہلے پوری طرح سے اس کی جانچ پرکھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا پیدا ہونے سے لے کر اب تک کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ اس لڑکی کو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یہ بات سب سے زیادہ موزوں تھی۔ ویسے اتنے دولت مند انسان کا مغرور ہونا بنتا بھی ہے۔ اضفا بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی لڑکی صرف افسوس سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کافی دیر بعد اضفا کو نام پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ عائشہ، اس لڑکی نے دھیمے سے جواب دیا تھا۔ نائس نیم۔ اضفا زیادہ دیر چپ رہ لے، یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ کی کافی زیادہ بلڈنگ ہو رہی ہے۔ آئیں پہلے میں آپ کی بینڈیج کر دوں۔ آپ کی کافی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ آئیں پہلے میں آپ کی بینڈیج کر دوں۔ اضفا کی پیشانی سے نیچے تک جاتی خون کی بوند دیکھ عائشہ فکر مندی سے بولی۔ اسے اضفا دیکھنے میں جتنی نازک سی لگی تھی، اس کا یوں درد برداشت کرتا دیکھ عائشہ کافی امپریس تھی اس سے۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو حناد محتشم جیسا بندہ خود اسے اپروچ کر رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کے باس کو بھی تو پتہ چلے ان کی وجہ سے کسی کا کتنا خون بہا ہے۔ اضفا بھی ہٹ دھرمی سے بولتی مین ڈور سے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سے کچھ دیر پہلے یہاں کے گھمنڈی مالک نے اسے دور دھکیلا تھا۔ مجھے لگا تھا وہابان بھائی کے آنے کے بعد نئے سرے سے کوئی ادھم دھڑکا ہوگا، مگر یہاں تو سرے سے اوبھان بھائی ہی غائب ہے۔ نائلہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی خفگی سے بولی تھی، پچھلے دنوں گھر میں شادی کی تیاریاں اور پھر وہابان کی آمد کی وجہ سے کافی رونق لگی ہوئی تھی، مگر اب ایک دم سارا رونق میلہ ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ سب ہی کافی بور ہو گئی تھیں۔ زائنگم اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہنی مون پر نکل گیا تھا، جبکہ وہابان یہاں اپنا نیا بزنس سیٹ کرنے میں بزی تھا۔ زینت بیگم اس کے اتنی جلدی کام میں لگ جانے کے خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی وہابان کچھ دن ریسٹ کرے، ان کے پاس رہے، لیکن دوسری جانب اس کے یہاں پوری طرح سیٹل ہو جانے والی بات بھی ان کے لیے سکون کا باعث تھی کہ اب وہ واپس انگلینڈ نہیں جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ ان میں سے کسی نے وہابان کو اس کے کام میں ٹوکا نہیں تھا کہ کہیں اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ بہو کچھ بات کی وہابان سے۔ زینت بیگم کو تو جیسے موقع چاہیے تھا وہابان کی شادی کا ذکر چھیڑنے کے لیے۔ جی اماں جان، کئی بار بات کر چکی ہوں اس ٹاپک پہ، مگر آپ جانتی تو ہیں اپنے پوتے کو، کتنا ٹیڑھا ہے، سیدھی طرح کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ثانیہ بیگم خفگی سے بولی تھی، میرے خیال میں آپ سب بڑوں کو ایک ساتھ وہابان بھائی پر دھاوا بولنا چاہیے، پھر ہی مانیں گے، ورنہ ایسے تو وہ اپنی شادی والی بات کو کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالتے۔ عروج نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالتے مفید مشورے سے نوازا تھا۔ جو آپ لوگوں کی پلاننگ چل رہی ہے نا، اس سے آپ سب نے وہابان کو واپس بھگا دینا ہے۔ آرام سے اسے کچھ وقت یہاں رہنے دیں، سیٹل ہونے دیں، اس کے بعد اپنے ان خطرناک ارادوں پر عمل کیجیے گا۔ خضر نے اندر داخل ہوتے ان کی آدھی باتیں سن لی تھی، جس وجہ سے اس نے سب کو تحمل مزاجی سے کام لینے کا کہا تھا۔ میرے خیال میں خضر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ابھی وہابان کو ٹائم دینا چاہیے اور تب تک اس کے مزاج اور پسند کے مطابق اچھی لڑکیاں ڈھونڈ کر رکھنی چاہیے، تاکہ اس کا جیسے ہی اس حوالے سے موڈ بنے ہمیں فوراً رشتہ طے کر دیں۔ ویسے بھی وہابان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔
گا۔ زینت بیگم نے بھی خضر کی بات کی تصدیق کی تھی۔ وہبان کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے کے گھر میں اس کی شادی کتنا بڑا مسئلہ بنی پڑی ہے۔ اضافہ عائشہ کی رہنمائی میں حناد کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا آفس شیشوں کی دیواروں سے بنایا گیا تھا جس سے وہ ارد گرد کے تمام مناظر پر نظر رکھ سکتا تھا، مگر ان شیشوں سے باہر سے کوئی نظر اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اضافہ برے فیسز بناتی حناد کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ آفس کی خوبصورتی دیکھ لمحے بھر کو اضافہ کی آنکھیں چندھا گئی تھی۔ پورے آفس میں وائٹ کلر کا بھرپور استعمال کیا گیا تھا۔ اتنی خوبصورت انٹیریئرز ڈیزائننگ اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ آفس میں موجود صوفے پر حناد کی چیئر میں بھی سفید رنگ نمایاں تھا، جسے دیکھ اضافہ سمجھ گئی تھی کہ وائٹ شاید اس شخص کا فیوریٹ کلر تھا۔ اضافہ عائشہ کی دی گئی ہدایت فالو کرتی دروازہ نوک کرتے حناد کی اجازت ملنے تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ حناد اس وقت سیٹ کی پشت سے سر اٹکائے آنکھیں موندے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اضافہ کی طرف سے آواز سن لینے کے باوجود اس نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کتنا گھمنڈی اور مغرور شخص ہے، اب پتہ نہیں کتنی دیر یہاں کھڑا رکھے گا۔ اس کی اکڑ تو میں نے نہ نکال دی تو میرا نام بھی اضافہ سلطان نہیں۔ اضافہ تب کر سوچتے ہوئے بولی۔ اضافہ سے 5 منٹ گزر جانے کے بعد بھی ایسے ہی ریلیکس موڈ میں بیٹھے فون پر باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اضافہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹی ہی تھی جب اس کی سماعتوں سے حناد محتشم کا بھاری لہجہ ٹکرایا تھا۔ کم ان مس اضفا سلطان۔ حناد کی آواز پر باہر کی جانب بڑھتے اضفا کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ واپس مڑی تھی جب حناد اسے ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا پوری طرح اس کی جانب متوجہ نظر آیا تھا۔ اضافہ آگے بڑھی تھی اور ایک کانفیڈنٹ اور کافی بولڈ لڑکی تھی، مگر اس وقت حناد کی خود پر اٹکی نگاہیں سے تھوڑا سا نروس کر گئی تھی، کیونکہ حناد کی گہری سرد نگاہیں اس کے ماتھے کے زخم پر اٹکی ہوئی تھی، جن پر اس نے ابھی بھی ٹشو رکھا ہوا تھا لیکن بینڈیج نہیں کی تھی۔ سٹ ڈاؤن۔ اسے ٹیبل کے قریب آ کر کھڑے ہوتے دیکھ حناد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اضافہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی لے کر کنارہ اٹک گئی تھی، پوری طرح نہ صحیح مگر وہ کچھ حد تک حناد محتشم کے روب میں آ رہی تھی۔ آپ کے لیے اپنا خون اتنا ضائع ہے کہ ایسی ہی ضائع ہونے دے رہی ہیں اسے۔ حناد کی نظریں اس کے خون آلودہ پیشانی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، کیونکہ یہ زخم اسی کا دیا ہوا تھا۔ نہیں، میرے لیے میری زندگی بہت قیمتی ہے اور میں خود کو ذرا سا بھی ہرٹ کرنے والے انسان کو معاف نہیں کرتی۔ یہ زخم ایسے رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کی کچھ بے جا کے اصولوں اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کسی کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اضافہ بنا کوئی لحاظ کیے صاف لفظوں میں گویا ہوئی تھی۔ جہاں حناد کو اس کے جملے ناگوار گزرے تھے، وہیں اس کی اتنی صاف گوئی سے بولنا وہ بھی حناد محتشم جیسے ٹیڑھے انسان کے سامنے کافی امپریس کر گیا تھا۔ یہ نڈر لڑکی اس کے کام کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، لیکن حناد ابھی ڈائریکٹ اسے وہ کام نہیں سونپ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد اپنی حدود کا ایک دائرہ کھینچ رکھا ہے، جسے جو انسان بھی پار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ وارننگ میں پہلی اور آخری بار دے رہا ہوں تمہیں۔ حناد کی بات لے کر ایسا تو حناد کسی کی بات لے لے، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ وارننگ اضافہ اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی ایسا تھی کہ اس کی اپنی سماعتوں تک بھی بامشکل پہنچ پائی تھی۔ اگر اس وقت سامنے بیٹھا شخص اس کا آئیڈل نہ ہوتا اور باہر اس کے گارڈز کی فوج نہ کھڑی ہوتی تو وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتی، جیسے وہ باقی سب لوگوں کے ساتھ کرتی تھی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حناد محتشم باقی لوگوں کے جیسے بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہاں میرے پی اے کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ کام کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ 70,000 اسٹارٹنگ سیلری ہوگی آپ کی۔ آگے آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے ہر مہینے انکریمنٹ بھی لگتا جائے گا۔ حناد نے جلدی سے اصل بات کی طرف آتے اضفا کو ساری تفصیل بتائی تھی، جسے سن کر اضفا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس سے ایک پی اے کی جاب کے لیے 70,000
पे किया जा रहा था। उसकी वेट्रेस वाली जॉब के 3 गुना थी ये तनख्वाह। अज़फ़ा तो खुशी के मारे चकरा कर रह गई थी। क्या तुम्हें ये जॉब मंजूर है? हन्नाद इसके तासुर से बहुत कोई खास्ता कर चुका था। ये लड़की उसकी सोच के मुताबिक लालची ही निकली थी, जैसे सिर्फ पैसों से ग्रस्त थी। लेकिन फिर भी एक बात तस्दीक करनी चाहिए थी। जी सर, मैं कल से ही ज्वाइन करना चाहूँगी, अज़फ़ा पुरजोश लहजे में बोली थी। हनाद जिस चीज़ को उसका लालच समझ रहा था, हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। अज़फ़ा को वहाबान से लिए पैसे भी लौटाने थे और साथ ही हना के ऑपरेशन के बाद के खर्चात के लिए भी उसे बहुत सी रकम चाहिए थी। अज़फ़ा को अच्छे से इल्म था कि लोग उसे लालची और मददियत पसंद लड़की समझते हैं, जिससे अज़फ़ा को कतई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने थे, इसलिए नहीं कि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, बल्कि वो यतीम खाने में रहते बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी अधूरी रहती ख्वाहिशात पूरा करना चाहती थी। अज़फ़ा नहीं चाहती थी कि जैसे वो बचपन से लेकर अब तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती आई थी, वो बाकी बच्चों के साथ भी हो। फैमिलीज़ में रहने वाले अपने पेरेंट्स के साए तले परवान चढ़ने वाले यतीम खानों में रहने वालों के एहसास नहीं समझ सकते थे, जहाँ रिश्तों की कमी के साथ कुछ ख्वाहिशात के अधूरे रह जाने की कसक भी सारी ज़िंदगी चलती रहती थी। अज़फ़ा हनाद को जॉब के लिए ओके कहती वहाँ से निकल आई थी। उसे अब ये गुड न्यूज़ हन्ना को देनी थी और साथ उससे बहुत सारी नसीहतें भी सुननी थी। वहाबान के दिमाग से फिलवक्त वो चिप वाली लड़की निकल चुकी थी, या शायद वो खुद ही ये मामला बाद में हैंडल करना चाहता था। अभी उसका पूरा फोकस मुल्क में घुसे उन 5 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर था, जो कोई आम दहशतगर्द नहीं थे। उनका तलक दुश्मन तंजीमों के साथ था। उनका आवाम के बीच होना बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता था। उन्हें किसी भी सूरत 24 घंटों के अंदर उनमें से किसी एक को गिरफ्तार करना ज़रूरी था, वरना वो दहशतगर्द अपने कदम यहाँ मज़ीद मजबूती से जमा लेते और उसके बाद आने वाली तबाही को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाना था। मेजर वहाबान का फोकस इस वक्त पूरी तरह शबीर खान और उसके कारंदों पर लगा हुआ था। वो उनकी गिरफ्तारी करके शबीर खान के साथ साथ ब्लैक ईगल को भी अल्टर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करना चाहता था। वहाबान ने स्याह बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करते वहाँ के तमाम हिस्सों का जायजा लिया था। तय खाने से लेकर ड्राइंग रूम तक कहीं भी किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी, जिसका साफ मतलब जाहिर था कि स्याह बंगले में किसी को भी नहीं लाया गया था। लेकिन वहाबान को आंखों देखे इस मनाजिर पर यकीन नहीं आ रहा था कि शबीर खान स्याह बंगले जैसी सेफ और सिक्योर जगह पर किसी को भी नहीं लाएगा। कुछ तो मिसिंग था। वो क्या था, वहाबान को उसका ही पता लगवाना था। तमाम जगहों से होते वहाबान की नज़र निशा के कमरे पर पड़ी थी। शबीर खान जैसे खबीस इंसान ने कुछ कमरों में भी खुफिया कैमरे लगा रखे थे, जिनका पता सिर्फ उसी को था। उसका करीबी फर्द बाबर भी इस बात से वाकिफ नहीं था। अनिशा के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके कमरे में भी कैमरा लगा हुआ है, जो सिर्फ लाइट ऑन होने पर ही काम करता था, और वो इस वक्त किसी की नज़रों के फोकस में थी। निशा उसे स्केच बोर्ड पर कुछ बनाती नजर आई थी। बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट रखा था, जिसकी वजह से उसकी नाजुक साइदार शफाफ गर्दन नुमाया हो रही थी। कैमरे की जानिब उसकी बैक थी। वहाबान की नज़र अनिशा से हटती उसके सामने रखे बोर्ड पर पड़ी थी, जिसे देखते वहाबान को 100 वाट का करंट लगा था। स्केच बोर्ड पर उसी की तस्वीर बना रही थी वो लड़की। वहाबान को इस लड़की ने निकाह में देखा था और अब वो सेम वही सब ड्रॉ भी कर रही थी। लेकिन वहाबान ने अचानक गौर किया था कि जिस दिन वो उसके रूम में गया था, तब उसने स्याह रुमाल से अपना चेहरा पूरी तरह ढांप रखा था, जबकि ये लड़की उसकी जो तस्वीर बना रही थी उसमें वहाबान ने रुमाल से अपना चेहरा ढांप रखा था। मतलब इस लड़की ने उसे दोबारा भी कहीं देखा था, मगर कहाँ? वहाबान अपने जहन पर जोर डालने लगा था जब अचानक उसके दिमाग में झुमक्का हुआ था। ये तो वही रुमाल था जो उस दिन थाने से निकलकर उस लड़की के पीछे जाते उसने निकाब के लिए इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब ये, वहाबान ने जल्दी से मोबाइल निकालते हुए उस ट्रैक्टर की पोजीशन ढूंढनी चाहिए थी, जिससे कुछ ही लम्हा बाद रेड डॉट की मौजूदा
पोजीशन वहबान के सारे डाउट्स क्लियर कर गई थी। इस इतने बड़े इंकशाफ पर वहबान का दिमाग भी माफ हुआ था। ये लड़की कितनी शातिर निकली थी। उस दिन उसके सामने मासूम, डरपोक और गूंगीपन का नाटक करने वाली की असली हकीकत ये थी। वो उस स्याह बंगले की तारीखी का एक भयानक हिस्सा निकली थी। वहबान को खुद पर गुस्सा आया था कि भला उससे इस लड़की को पहचानने में गलती कैसे हो गई थी। लेकिन एक बात जो उसको अभी भी उलझा रही थी कि आखिर इस लड़की ने उस दिन उसके रूम में आने का किसी को क्यों नहीं बताया था। वहबान के उसके रूम से निकलने के बाद भी अगर वो किसी को बता देती तो वहबान का स्याह बंगले से निकलना मुश्किल हो जाता, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। कोई तो ऐसी गुत्थी थी जो अब भी नहीं सुलझ रही थी, मगर वहबान उसे हर कीमत पर क्लियर करके रखना चाहता था। अब इस लड़की का उसके हाथों बचना आसान नहीं था। वहबान उस सोच अंदाज में अपना अगला लाएमल तरतीब देता वहां से निकल आया था। सर, तमाम मेहमानों को बाहिफाजत महफूज जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पाक आर्मी के ऑफिसर हमारे हाथों मार खाने के बाद अब सर पकड़ कर रो रहे हैं। एक तरफ उनका इतना जानी और माली नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ मुल्क में खतरा मजीद बढ़ जाने का खौफ तलवार की तरह उनके सरों पर लटक रहा है। शबीर खान ब्लैक ईगल के सामने खड़ा अपनी कामयाबी का प्रचार करता फखरिया लहजे में बोला था, लेकिन ब्लैक ईगल के चेहरे पर वैसी ही संजीदगी और सदपन देख उसकी मुस्कुराहट भी मदरूम हुई थी कि कहीं इस बात को भी गुस्ताखी मानते ये सरफिरा शख्स उसका दूसरा बाजू भी ना काट दे। उस नक्शे का कुछ पता चला। ब्लैक ईगल का ठठड़ा देने वाला अगला सवाल शबीर खान को अपनी जगह मुंजदिन कर गया था। लेकिन मगर मेरे आदमी दिन रात एक की ये उसी की तलाश में है। मुझे इतना यकीन है कि वो नक्शा पाक आर्मी के हाथ नहीं लगा। अगर लगा होता तो अब तक वहाँ रेड पड़ चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैंने रॉ इंडिया से आए अपने 5 मेहमानों को कुछ सिक्योरिटी ख्वाहिशात के बासित वहीं पहुंचा दिया है। शबीर खान की बाकी की बात अभी मुंह में ही रह गई थी जब ब्लैक ईगल की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ उसका चेहरा दूसरी जानिब मुड़ गया था। वो अपनी जगह से बिल्कुल लखड़ा गया था। उसने खौफजदा नजरों से ब्लैक ईगल का एक बार फिर वही वैसा ही खतरनाक मूड देखा। अपनी सलामती की दुआ मांगी थी। तुम्हें किसने इजाजत दी इतने अहम आदमी को उस जगह पहुंचाने की जिसका नक्शा तुम्हारे ही आदमियों ने गायब किया है? जब मैं से 5 सेफ लोकेशन बताई थी तो क्यों अपनी नाकारा अक्ल इस्तेमाल की? जल्दी से बोलो, अपने आदमियों को निकलवाए मखराज को वहां से। अगर उसे कुछ हुआ तो इंडिया की तंजीम से हमारे तलकात हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। ब्लैक ईगल तो जैसे पागल हो उठा था। ब्लैक ईगल के एक थप्पड़ की वजह से शबीर खान की उस साइड वाली आंख अब काम करना छोड़ चुकी थी। उसे अपना वो हिस्सा सुन महसूस हुआ था। शबीर खान ने खौफ से कांपते हाथों से न जाने कितनी बार कॉल मिलाई थी, मगर उसका वहां वजूद कोई भी आदमी फोन नहीं उठा रहा था। ब्लैक ईगल की आग उगलती नजरों से निकलते शोलों से शबीर खान को अपना आप भस्म होता महसूस हुआ। दफा हो जाओ, वहाँ फौरन पहुंचो। ब्लैक ईगल धाड़ा था जिस पर शबीर खान फौरन वहां से भाग निकला था। निशा स्केचबोर्ड पर कपड़ा डालती चाय का मग उठाए आतिशदान के पास आन बैठी थी। आतिशदान में जलती लकड़ियों को यकटक देखते वो गहरी सोचों में खोई हुई थी। उसने अब तक बहुत सी मुख्तलिफ जिंदगी जी थी। उसके बचपन से लेकर अब तक का वक्त एक कमरे में बंद होकर ही गुजरा था। होश संभालते ही वो जान गई थी कि उसकी परवरिश हराम के बलबूते पर की गई थी। उसकी माँ और मामू मासूम और बेगुनाह जानों का सौदा करके अपने लिए ये दौलत के मीनार खड़े कर रहे थे। वो उनसे बहुत कमज़ोर थी। उसके साथ लड़ने का हौसला नहीं था उसमें, और अगर उन्हें पता चल जाता कि वो इन लोगों के काम से लाइलम नहीं है तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी। उसकी माँ और मामू की बेपनाह मोहब्बत का नफरत में बदलती पत्ता भी ना चलता, मगर वो अपनी आंखों के सामने गलत देखने के बावजूद आराम से बैठी नहीं रह सकती थी। पर्दों के पीछे छुपकर उसने शबीर खान को जाने कितने लोगों की जान लेते देखा था। जिस चीज़ में से खौफजदा और सहमाने के बजाय मजबूत किया था, उसने अपने दिल में ये अहद किया था कि वो इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। जिसमें उसका साथ दिया था उसके एक खैरख्वाह ने।
जो आज भी उसके साथ ही था और हर पल उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी उसे ज़रूरत होती थी उसका वो साथी वहाँ मौजूद होता था, हर पल उसकी पुष्ट पनाही के लिए सरगम। वहबान आज फिर अपनी जान को खतरे में डालता स्याह बंगले के अंदर कूद चुका था, जहां उसके पकड़े जाने और मरवा दिए जाने के 90% चांसेस थे। मगर वो फिर भी ये रिस्क लेना चाहता था। अपने मुल्क के लोगों पर मंडलाते उस खतरे को ख़त्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए 10% चांस भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेजर वहबान हातिम को खुद पर पूरा यकीन था। उसने बंगले की सिक्योरिटी का सारा सिस्टम अपने मोबाइल में मुंतकिल कर दिया था। बंगले के अंदर दाखिल होने से पहले ही उसने कैमरों को फिक्स कर दिया था, जिसे शबीर खान की सिक्योरिटी हेड्स भी नहीं पकड़ सकते थे। वहबान का रुख उसी जानिब था जहां से बासानी निशा के रूम में दाखिल हो सकता था। उसे बिना किसी की नज़रों में आए ये काम करना था। वो किसी को भी चौंकना नहीं कर सकता था, पर हर तरफ गार्ड्स गन उठाए मुस्तैद खड़े थे। वहबान पिलर्स के पीछे से होता नहायत ही होशियारी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच का रास्ता उससे बिना किसी पिलर के ही तय करना था। उस एरिया में गार्ड्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। वहबान आराम से उनकी नज़रों में आ सकता था। उसे चंद सेकंड लगे थे सोचने में। वो ज़्यादा देर यहाँ खड़े होकर मज़ीद ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, जब उसकी नज़र वहाँ साइड पर बनी क्यारियों पर पड़ी थी। ऊपर जलती लाइट्स की वजह से वहां लगे पौधों का साया जमीन पर पड़ता उसे उस हिस्से को तारीख कर रहा था। वहबान को ये रास्ता क्रॉस करने के लिए बहुत मददगार लगने लगा। वो पिलर के पीछे से हटा, जमीन के साथ लगकर बिल्कुल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा था। वहां खड़े गार्ड्स के फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो पाया था कि उनके सामने से कोई आदमी गुजर रहा है। वहबान ने 5 मिनट के अंदर रेंगते ये रास्ता तय किया था। वो उस हिस्से तक आन पहुंचा था जहां से उसे पाइप के रास्ते ऊपर चढ़कर निशा के कमरे के टेरेस तक पहुंचना था। कैमरों की नज़र में आने की उसे परवाह नहीं थी। वो उसका पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। वहबान आज भी स्याह लिबास में मुबले स्याह स्कार्फ से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसकी आंखों के सिवा चेहरे का कोई हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। वहबान की रफ्तार बहुत तेज थी। उससे चंद सेकंड ही लगे थे ऊपर पहुंचने में। वो टेरेस वाले दरवाजे का लॉक तोड़ता खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था। उस दिन की निस्बत आज कमरा रोशन था। वहबान ने इख्तियार के पेश नज़र पहले अंदर झांकते कमरे में सिर्फ निशा के ही होने की तस्दीक की थी। बंद बेड बिल्कुल खाली था, जबकि वो हसीन दुशीरा से स्टडी टेबल पर बुक्स के ऊपर सर रखे होशो व खराब से बेगाना बैठी नजर आई थी। वहबान सबसे पहले दरवाजे की जाने बढ़ा था। दरवाजे को डबल लॉक करते उसने अपनी तसल्ली की थी और फिर उसने कदम निशा की जाने बढ़ा दिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी गैर अखलाकी हरकत किसी अनजान लड़की के कमरे में यूं रात के स्पैर आएगा, मगर ये उसका काम था और वो ऐसा करने पर मजबूर था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि ये लड़की उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। निशा को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वो अपनी स्टडी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। शबीर खान और अपनी माँ की जासूसी करने के साथ साथ उसकी स्टडी में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। उसने हर चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ था। बिलाशुबा वो एक ज़हीन लड़की थी। इस वक्त भी अपनी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट करते उसकी कब आँख लगी उसे पता भी नहीं चला। बुक्स के ऊपर ही सर अटकाए वो बेराम हालत में होने के बावजूद बहुत मज़े से सो रही थी, इस बात से अनजाने कि कोई अजनबी उसके कमरे में इंटर हो चुका है। वहबान हर तरह से तसल्ली करता चलता हुआ उसके पास आन खड़ा हुआ था। निशा के लंबे बाल हर तरह की कैद से आज़ाद उसकी नाजुक वजूद को पूरी तरह से ढांपे हुए थे। उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि ये नाजुक सी लड़की इतनी खतरनाक काम भी सर अंजाम दे सकती है। वो कितनी बड़ी एक्टर थी। वो कैसे उसके सामने इतनी मासूम और गूंगी लड़की का नाटक किया था। उसने अब तक खुद को ऐसी ही सबकी हमदर्दियों में छुपा कर रखा हुआ था। किसी का उस पर शक जाना पॉसिबल ही नहीं था, मगर वो भी वहबान हातिम था जब तक अपने शिकार तक ना पहुंच जाता चैन से नहीं बैठता था। वहबान ने थोड़ा सा आगे होते निशा का टेबल बजाते उसके सर के नीचे से बुक खींच ली थी। वहबान के इस हरजाना अमल पर निशा की गहरी नींद टूटी थी। वो हड़बड़ाकर सीधी हो बैठी थी, मगर सामने खड़े निकाब पोश को देख उसका चेहरा जद पड़ा था।
अनीशा आज अच्छे से पहचान गई थी कि ये वही नकाबपोश है जो उस दिन गार्ड से गोली लगने के बाद उसके रूम में कूदा था, और उसने उसी पुलिस या आर्मी वाला कोई बंदा समझते भरपूर कॉर्पोरेट किया था। अगर वो चाहती तो इस आदमी के अपने कमरे से निकलती शबीर खान और गार्ड्स को अल्टर करके पकड़वा सकती थी, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहाफिज की मदद करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहती थी। मगर इस वहाबान का दोबारा उसके कमरे में मौजूद होना उसके गिर्द गिर्द खतरे की घंटी बजा गया था। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर 2 कदम पीछे हटती दीवार के साथ जा लगी थी। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वो वहाबान के सामने भी वैसी ही एक्टिंग करने वाली थी जो वो अब तक अपनी माँ और पूरी दुनिया के सामने करती आई थी। वहाबान ने बहुत गौर से उसका ये अंदाज देखा था। वो दरवाजे की जाने भागने के बजाय दीवार के करीब गई थी, मतलब वो आज भी इसे पकड़वाने का इरादा नहीं रखती थी। निशा यामीन, यही नाम है ना तुम्हारा? असमारा खान की इकलौती बेटी और शबीर खान की लाडली भांजी, जो बेचारी बोल नहीं सकती, मासूम और बेजार लड़की। वहाबान उसके मुकाबले आते उसका वो तारफ बोल गया था जो अब तक उसके इर्द गिर्द रहने वाला हर फर्द जानता था, लेकिन ये इस लड़की की असलियत किसी सूरत नहीं थी। सच कुछ और था जो उसे आज इस लड़की के मुंह से गुलवाना था। ध्यान की बात पर दीवार से चिपकी निशा ने साबत में सर हिलाया था। बड़े बड़े दुश्मनों का नहायत ही बहादुरी से मुकाबला करने वाली इस वक्त सामने खड़े शख्स की सुर्ख आंखों से बहुत ज्यादा सख्त घबराई हुई थी। उसे अपनी एक्सपोज होने का डर था, और ये भी हो सकता था कि यह आदमी वैसा ना हो जो वो समझ रही थी। ब्लैक ईगल का भी कोई आदमी हो सकता था। मोहतरमा, ये तो वो तारिफ है ना जो दुनिया वालों के लिए है। मुझे अपनी हकीकत बताओ। मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम बोल सकती हो, इसलिए ये गुंगा होने का नाटक मेरे सामने मत करना। वहाबान की बात पर निशा ने झटके से सर उठाया था। जब वहाबान की नज़र उसकी गर्दन के दरमियानी हिस्से पर पड़ी थी, जहाँ चमकते 2 स्याह तिल उसके रहस्य शक की भी गुंजाइश पूरी तस्दीक कर गए थे। ये वही लड़की थी, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। वहाबान जानता था ये लड़की इतनी आसानी से किसी सूरत नहीं मानेगी, उसे अपने तरीके से ही सच उगलवाना पड़ेगा। अनिशा जो वहाबान की गहरी निगाहों की वजह से अपने लंबे खुले बाल नहीं बांध पा रही थी, अपने कंधे पर झूलते रेड दुपट्टे को ही सर पर ओढ़ गई थी, मगर दुपट्टे के अंदर से भी उसके लिए बाल छुपाना मुश्किल हो रहे थे। वहाबान को उठकर अपने करीब आता देख अनिशा का चेहरा खौफ से जर्द पड़ा था। शबीर खान ने बाहर से आने वाली दहशतगर्दों को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? मुझे हर बात सच सच बताओ, वरना तुम्हें अपने साथ उठाकर ले जाने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वहाबान ने उसकी कलाई दबोच कर अपने मुकाबले करते धीमी धमकी दी थी। वहाबान की गर्म सांसें और हरजाना गिरफ्त निशा की हालत गैर हुई थी, मगर निशा अभी भी कुछ उगलना नहीं चाहती थी। उसने नफी में सर हिलाया था। उसे यकीन नहीं था कि इस आदमी को सारी मालूमात देकर वो ठीक करेगी या गलत। वहाबान समझ गया था कि ये लड़की उसकी सोच से ज्यादा तेज है। जितनी मासूम वो दिखाई देती थी इतनी थी नहीं। उसे अपने तरीके से ही वो अब इससे सब कुछ उगलवाना था। वहाबान उसे आज़ाद करता उसकी अलमारी की जानिब बढ़ा था, जहाँ उसने निशा को अपने स्केच छुपाते देखा था। निशा की आंखें गैर यकीनी से फटी थी। उसकी इस खुफिया लॉकर के बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। इसको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला उसका खैर ख्वाह भी नहीं। वहाबान ने अपने दोनों स्केचेस उसके सामने रखे थे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम वही लड़की हो जो उस दिन थाने में बाहर फकीनी के रूप में बैठी दूसरों की आंखों में धूल झोंक रही थी। वहाबान उस पर भी जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसने उसकी गर्दन में चिप लगा रखी थी, इसलिए वो दूसरे तरीके से उससे सच उगवाने की कोशिश कर रहा था। बोलो जल्दी, अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड भी ना लगे तुमसे सब सच उगलवाने को। मेरी दी जाने वाली इस मोहलत का फायदा मत उठाओ। वहाबान उसके पास करीब आया था। ये सच था, उसका इख्तियार किए जाने वाला तरीका निशा सह ना पाई। अगर यहाँ कोई मर्द होता तो वो अब तक वहाबान के आगे सब उगल चुका होता। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मगर मैं किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल जानती। निशा ने आखिरी बार अपनी दिलकश आवाज़ वहाबान के कानों तक पहुँचा ही दी थी, मगर उसका जिद्दी लहजा वहाबान को गुस्सा दिला गया था। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। वहाबान का दिमाग घूम चुका था। वो निशा की कलाई दबोच कर उसकी कमर के पीछे मोड़ता दबे गुस्से में गड़ाया था। उसकी साथ गिरफ्त पर निशा क्या
को अपना बाजू टूटता महसूस हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलते देख बहान ने उसे आज़ाद कर दिया था। ये लड़की उसे कुछ नहीं बताने वाली थी। उसे 100% यकीन नहीं था कि इस लड़की के पास कुछ है या कुछ भी है या नहीं। बिना किसी सबूत के वो उसको टॉर्चर नहीं कर सकता था, ना ही उसकी फील्ड में औरतों के साथ नावरा स्क्रू करने की इजाज़त थी। अपना मुंह बंद रखकर तुम भी इन जालिमों के गुनाहों की बराबर की शरीक बन रही हो, जिसकी सजा तो मैं तुम्हें अनकरीब देकर रहूंगा। वहबान उसकी जानब कहर बरसाती नजरों से देखता वापसी के लिए पलटा था। अनिशा अपनी जान साख खड़ी अपनी जगह साख खड़ी से खामोश नजरों से देख रही थी। उसे ये चौड़े सीने और गहरी आंखों वाला शख्स कहीं से भी ब्लैक हैगल या शबीर खान का आदमी नहीं लगा था। उसका दिल कह रहा था कि वो इस पर ट्रस्ट कर सकती है। रुको। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, अनिशा की पुकार ने उसके कदम रोक दिए थे। कपड़े गदे भेजकर गहनी सो रही थी जब उसके मोबाइल की अजीब और गरीब रिंगटोन बज उठी थी। अज़ाफ़ा शायद दुनिया की वाहिद लड़की ही थी जो अपनी रिंगटोन में किसी सॉफ्ट से म्यूज़िक के बजाय जानवरों की आवाज़ें लगाती थी, जिसे सुनकर आसपास मौजूद लोगों की एक बार तो जान निकल जाती थी। ऊंची सुरों में बजती घोड़े की आवाज़ पर अज़ाफ़ा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मगर उसके साथ सोई हिना की नींद टूट चुकी थी। वो झटके से उठकर कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाते गैब दिमागी से घोड़े को तलाश करने लगी थी। जब कुछ देर के बाद होश बेदार होते उसका ध्यान अपने साथ सोई अज़ाफ़ा पर गया था, जिसके तकिए के करीब से ये सारी आवाज़ें आ रही थी, मगर उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था। अज़ाफ़ा की बच्ची, उठो और बंद करो अपना मोबाइल। मेरी नींद का सत्यानाश करके रख दिया है तुमने, और ऊपर से दिल अलग जगह पर नहीं आ रहा। हिना ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया था कि क्या हुआ। अज़ाफ़ा इस अचानक आफत पर हड़बड़ाकर उठ गई थी। रात के 12 बजे तुम्हारा फ़ोन पागलों की तरह बज रहा है। हिना ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते उसका ध्यान मोबाइल की जानिब मुबलद करवाया था। ओह, अज़ाफ़ा की तवज्जो अब अपने मोबाइल की जानिब गई थी। ये तो हन्नाद सर की कॉल है, वो मुझे क्यों इस वक्त कॉल कर रहे हैं। अज़ाफ़ा मोबाइल हाथ में लिए हैरत से बोली थी, जहाँ हन्नाद की कॉल एक बार बंद होकर दोबारा आना शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये बंदा ठीक नहीं है। इस टाइम कौन सा बॉस कॉल करता है भला अपनी सेक्रेटरी को, मगर तुम पर न जाने क्यों अचानक पैसे कमाने का भूत सवार हो गया है। हिना उसकी जानिब खफगी भरी नज़रों से देखते बोली थी, जिसके बहुत बार इनकार करने के बावजूद अज़ाफ़ा यहाँ जॉब करने की अपनी जिद पर उड़ी हुई थी। तुम तो चुप करो यार। इस मेरे उल्टे दिमाग वाले बॉस को अचानक क्या काम पड़ गया मुझसे। अज़ाफ़ा उसे चुप रहने का इशारा करती कॉल पिक कर गई थी। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी तुम। हनाद अपने मखसूस सर्द लहजे में बोलता लम्हे भर को अज़ाफ़ा को खौफ ज़्यादा कर गया था। सर, मैं सो रही थी। अज़ाफ़ा का दिल तो कोई और जवाब देने को चाहा था, मगर मुकाबले मौजूद जल्लाद के खौफ की वजह से खुद पर ज़ब्त कर गई थी। मेरे ड्राइवर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, अगले 15 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे पहुंचो, हमें एक पार्टी में जाना है। तुम मेरी PA हो, इसलिए मेरे साथ चलोगी। हनाद के अगले लफ्ज अज़ाफ़ा के 14 तबक रोशन कर गए थे। क्या सर इस वक्त? अज़ाफ़ा ये सवाल करती हिकला गई थी। भला ये कौन सा टाइम था पार्टी का? उसके साथ कान लगाकर उसकी बात सुनती हिना ने उसे साफ इनकार करने का इशारा किया था। तुम्हें एक बार का कहा समझ क्यों नहीं आता? हनाद मोहतशम इससे ज़्यादा नरमी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। अगर उसे इस लड़की की अपने काम में इतनी ज़रूरत ना होती तो वह ऐसी मचोर लड़की को कभी अपने करीब ना रखता। आई एम सॉरी सर, मैं रात के इस पैर बिल्कुल भी किसी पार्टी में नहीं जा सकती थी। अगर आपकी जॉब पर ऐसी ही काम है तो मुझे ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी। हिना की हिम्मत दिलाने पर अज़ाफ़ा मजबूत लहजे में उसे अपना जवाब सुना चुकी थी। मोहतरमा, ये तो आपको जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम मेरे साथ 6 माह के लिए काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो, अगर तुमने ये जॉब उससे पहले छोड़ी तो तुम्हें मुझे 1 हफ्ते के अंदर 5 करोड़ की रकम अदा करनी होगी। हनाद बहुत सुकून से बोलता। अज़ाफ़ा के साथ साथ हिना के भी होश उड़ा गया था। दोनों ने पिटी पिटी नजरों से एक दूसरे को देखा था। जो कहा है वो फौरन करो, वरना तुम्हारे लिए ही मुश्किलात बढ़ेंगी। हनाद अपनी बात कहकर फोन बंद कर चुका था, जबकि अज़ाफ़ा साथ दोनों हाथों में थामे हैरान परेशान सी हिना को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अज़ाफ़ा रोमांची आवाज में बोली थी। किसी बात की टेंशन ना लेने वाली लड़की अपनी इज्जत के खौफ से
परेशानी भरे लहजे में बोली थी। अब होना क्या है, जो वो कह रहा है वो कर। ये आदमी बहुत खतरनाक है अज़ाफ़ा। तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। ऐसे लोग इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। हिना की हालत भी अज़ाफ़ा जैसी ही थी। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हिना को इस वक्त यही समझ में आया था, पागल हो क्या, दोनों एक साथ मुसीबत में फंसेंगे जाके। अज़ाफ़ा इनकार करती बेड से उठी थी। उसने बिना कपड़े चेंज किए अलमारी से अपना स्याह गाउन निकाल कर ऊपर पहन लिया था, जो वो कॉलेज टाइम्स में पहनती आई थी। पर्पल कलर के स्कार्फ से हिजाब करते वो मेकअप से आरी चेहरे के साथ जाने को रेडी थी। उसे अपना ये रफ सा हुलिया रात के इस पहर जाने के लिए बिल्कुल मुनासिब लगा था। फिक्र मत करो, मैं अपनी इतनी हिफाजत करना तो जानती ही हूँ। ये हनाद मोहतशम बहुत ही गलत लड़की से उलझ रहा है। शायद ये समझता है हर लड़की कमज़ोर और नाजुक होती है, मगर मैंने इसके नाम नाक में दम करके ना रख दिया तो मेरा नाम भी इज़ाफ़ा सुल्तान नहीं। इज़ाफ़ा एक अज़म से कहती रूम से निकल आई थी। हिना उसे वापस अपनी शेरनी वाले मूड में आता देख काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुकी थी। उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में अकेले चलना सीखा था। वो उन खुशकिस्मत लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी जिनके सरों पर बाप की शफ़क़त और हमेशा भाइयों का साया रहता था, जिनको कभी भी अपने हक के लिए माशरे से लड़ना नहीं पड़ता था। बिल्कुल उन दोनों का शुमार ऐसी लड़कियों में होता था जिन्हें अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। इसी चीज़ ने इन्हें इतना मजबूत कर दिया था कि अब वो हर तूफान का सामना कर सकती थी। वहबान निशा की पुकार पर रुका था मगर पलटा नहीं था। मैं कैसे यकीन करूं तुम पर कि तुम कोई गलत इंसान नहीं हो? मैंने तो अभी तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा हुआ। निशा सोच चुकी थी कि वो इस इंसान को अपनी अब तक की हासिल की गई मालूमात सौंप देगी। चेहरा दिखा दूं तुम्हें ताकि तुम उसका स्केच बनाकर अपने घटिया मामू को दे दो। मैं भला ये सोचकर आया ही क्योंकि हराम के बल बूते पर पलने वाली लड़की का ज़मीर जिंदा हो सकता है। वहबान उसकी जाने मुड़कर देखता जहरखंद लहजे में बोला था। उसके इतने सख्त लफ्ज़ के बावजूद भी निशा बिना कुछ बोले खामोश निगाहों से उसे देखी गई थी। उसे इस अजनबी इंसान की इन कड़वी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, मगर उसे पड़ रहा था, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जान पाई थी। उन 5 दहशतगर्दों में से 2 के ठिकाने मुझे पता है। पिछले कई महीनों से ये लोग उनकी सेफ्टी की तैयारी कर रहे थे, जिनमें बहुत कोशिश के बावजूद 2 जगहों का नक्शा मालूम कर पाने में कामयाब हो पाई हूँ मैं। एक दहशतगर्द को इसी बंगले के बेसमेंट में छुपा रखा है, जहाँ जाने की इजाज़त शबीर खान के अलावा किसी को नहीं है। वहाँ एक पासवर्ड लगाया गया है जो सिर्फ शबीर खान को पता है, मगर उस बेसमेंट का एक दूसरा खुफिया रास्ता भी है जिससे किसी की नज़रों में आए बगैर अंदर दाखिल भी हुआ जा सकता है और बासानी वहां से बाहर भी आया जा सकता है। मेरे पास इस बेसमेंट के एक एक हिस्से की फुटेज मौजूद है और उस रास्ते की भी। दूसरा दहशतगर्द यहाँ से 100 किलोमीटर दूर घने जंगल में ज़मीन दोज बनाए खुफिया सेल में रखा गया है, जिसकी तामीर पिछले 6 माह से जारी थी और मैं उनकी नाक के नीचे से उस सेल का खुफिया नक्शा चुरा चुकी हूँ। ये रहा वो नक्शा। निशा उसके गहरे तंज के जवाब में बिना कुछ बोले सारी मालूमात उसके आगे रख गई थी। उसने अपनी जान पर खिलकर हासिल की गई एक एक चीज़ वहबान के सामने आन रखी थी। वहबान जानती निगाहों से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेबसी है, लेकिन अपने होश संभालने के बाद जितना हो सका इस हराम से दूर रहने की कोशिश की है। मुझे अपने मुल्क अपने लोगों से बहुत प्यार है, शायद आपसे भी कहीं ज़्यादा। ये लफ्ज़ अदा करते ना चाहते हुए भी निशा की आवाज़ में नमी उतर आई थी। वहबान अब भी वैसे ही खामोश खड़ा उसे देख रहा था। सुनहरी झील सी गहरी आंखों में नमी भरी हुई थी। गुस्से और खफगी से इतनी देर बोलने की वजह से उसके गाल लाल हो चुके थे और सांस फूल चुकी थी। गुलाबी पंखड़ियां जब्त की कोशिश में हौले हौले लहज रही थी। वहबान ने बहुत मुश्किल से इस होशरुबा मनाज़र से नजरें फेरी थी। इस लड़की को देखकर हमेशा से नजरें का जाविया बदलना मुश्किल हो जाता था। आप जिस मकसद से यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है, अब आप जा सकते हैं, आप यहाँ से। निशा उसकी नज़रों से घबरा कर अपना रुख फेर चुकी थी। उसकी अब तक की जिंदगी में शायद ये पहली बार था कि वो इतना बोली थी। वो वैसे ही खड़ी रही थी जब उसे अपने पीछे से चीज़ें उठाने और कदमों के दूर जाने की आवाज़ आई थी। निशा की आंखों से एक आंसू लड़क कर गाल पर फिसल गया था। वो पिछले इतने दिनों से इस इंसान के बारे में सोच रही थी जिसने अपनी एक लाइन से उससे बहुत ज़्यादा हट कर दिया था और फिर और भी बिना सॉरी बोले अपना
मतलब पूरा होती निकल गया था। यहाँ हर कोई सेल्फिश है, मैं भला क्यों रो रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शख्स मेरे बारे में चाहे जो भी सोचे। निशा अपने आप को डुबती वापस पलटी थी जब ऐन अपने पीछे खड़े वहाबान को देखकर उसकी चीख निकलते निकलते बची थी। वहबान ने गहरी नजरों से उसकी भीगी पलकें देखी थी। निशा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने चेहरा झुकाते फौरन अपने आंसू छुपाए थे। तुम जो ये सब कह रही हो, अगर ये सच हुआ तो तुम्हारी ये मालूमात मेरे हवाले करना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम जब जहाँ जैसे चाहोगी मैं इस एहसान का बदला उतारने को तैयार रहूंगा। वहबान बिना अपनी पिछली कही किसी बात पर जरा सी भी शर्मिंदगी का इजहार किए उसके भीगे चेहरे पर एक आखिरी नजर डालता वहां से निकल गया था। निशा को उसकी बात मजीद गुस्सा दिला गई थी। कितना घमंडी और बेहिस इंसान था। सॉरी बोलना तो दूर, उसने शुक्रिया तक का लफ्ज अदा करना गवारा नहीं किया था। उफ, कितना अजीब इंसान था ये। मैं कितनी पागल हूँ जो उसके बारे में इतने दिनों से सोच रही थी। मुझे अब ना इसके बारे में दोबारा कोई ख्याल अपने दिमाग में लाना है और ना ही ये उल्टे सीधे स्केच बनाने हैं। निशा शदीद खफगी का इजहार करते स्केच फाड़ने के लिए टेबल की जानिब पलटी थी, मगर ये देखकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था कि वो उल्टी खोपड़ी वाला शख्स उसकी इतनी मेहनत से बना स्केचेस भी बना ज़्यादा साथ ले गया था। वो जानती थी कि वो ज़रूर उसे फाड़ देगा। निशा का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। वो बिस्तर में घुसती कंबल सर तक ओढ़ गई थी। वो सोच चुकी थी कि अगर अगले 2 दिनों तक उसे दहशतगर्दों के पकड़े जाने के हवाले से कोई खबर ना मिली तो वो उस शख्स को ढूंढकर उसे अपने हाथों से ख़त्म करेगी। अज़ाफ़ा अनहाद की भेजी की गाड़ी में आन बैठी थी। गाड़ी में बैठती उसने एक बार फिर अपने पर्स में रखे अपने स्पेशल हथियार चेक किए थे। एक छोटा सा चाकू और पेपर स्प्रे वो हमेशा अपने साथ रखती थी, जिन्हें इस्तेमाल करना भी उसे बहुत अच्छे से आता था। ड्राइवर बिना कोई बात किए खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अज़ाफ़ा को के मुखातिब करने पर भी ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म नहीं था। अनाथ मुहतशम का हर आदमी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता था। कुछ देर के बाद गाड़ी रंग बिरंगी रोशनियों में डूबे एक बड़े से महलनुमा घर के ऊंचे लंबे गेट से अंदर दाखिल हुई थी। जिस शख्स का ऑफिस जब इतना शानदार था तो घर का होना तो बनता था। अज़ाफ़ा की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई थी। उसे लगा था कि वो अपने ख्वाबों के महल में आर खड़ी हुई थी। उसका बचपन से सपना था ऐसी महलों जैसे हसीन घर बनाने का। ये जानते हुए भी कि उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, वो हर रोज़ रात को इसी का सपना देखकर सोती थी। गाड़ी के झटके से रुकने पर वो वापस हाल में लौट आई थी। गाड़ी से निकलते सामने खड़े गार्ड की मुअय्यद में वो अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ लंबी सी राहदारी में ज़रा से फासले पर गार्ड मुस्तैद से खड़े किए गए थे। अज़ाफ़ा ने कोफ्त भरी नज़रों से वहाँ मौजूद हर इंसान का रोबोट बिहेवियर देखा था। ये कैसी ज़िंदगी है भला जिसमें आप अपनी मर्जी से हिल भी ना पाओ। इजाफा उन पर अफसोस करती आगे बढ़ी थी। हर तरफ से वर्दी में नजर आते गार्ड्स को देख अजाफा को घबराहट महसूस होने लगी थी। ये उसे कहाँ लाया गया था, जहाँ औरतों का नाम वो निशान तक नहीं था। अजाफा को हनाद भी अभी तक न कहीं नजर नहीं आया था। उसे न जाने कौन कौन सी हाल और राहदारियों से गुजारते अंदर ले जाया जा रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर उसकी सांसें फूल चुकी थी, मगर उसके आगे चलता गार्ड कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी और कितना आगे जाना है भाई? और क्या इस घर में मेरे अलावा कोई और औरत भी मौजूद है या यहाँ सिर्फ मर्दों का ही डेरा है? अजाफा इससे ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती थी। उसकी बात पर वो गार्ड बिना कोई रिएक्ट किए ऐसे ही चलता रहा था। अजाफा ने खार जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। कैसे उल्टे दिमाग वाले बॉस से पाला पड़ा है। मुझे आधी रात को इतनी गहरी नींद से सिर्फ ये मनहूस सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए उठाया है। उसने इजाफा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती इर्द गिर्द काम में मसरूफ गार्ड्स को बिला वजह घूरे गई थी। हनाद मुस्तशम के इस रोशनियों से जगमगाते महल में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बाहर इस वक्त आधी दुनिया सो चुकी है। इजाफा की अब मजीद सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत जवाब देने लगी थी जब आखिरकार गार्ड उस पर रहम खाता दरवाजे के आगे आ रुका था। आप अंदर जा सकती हैं। खुद दरवाजे के बाहर ही स्टैचू बनकर खड़े होते उसने इजाफा को अंदर जाने का इशारा किया था। इजाफा ने मशकूक नजरों से दरवाजे को देखते कुछ देर की सोच विचार के बाद अंदर जाने का फैसला कर लिया था। उसकी गिरफ्त अपने हैंडबैग पर मजीद मजबूत हुई थी, जिसमें उसकी सेफ्टी के हथियार मौजूद थे।
हल्का सा दरवाजे को पुश्त करते हुए अंदर दाखिल हुई थी, मगर सामने का मनाजर देख उसकी आंखें हैरत से खुली थी। वो जो कब से यहाँ फीमेल मुलाजमीन की तलाश में हर तरफ नजरें दौड़ा चुकी थी, सामने दो फुल यूनिफॉर्म में मुबलिस लड़कियां हनात मुहतशम की तैयारी में उसकी मदद करवा रही थी। एक उसके हाथ में रेस्ट वॉच थमा रही थी, जबकि दूसरी जरा से फासले पर उसका ब्रांडेड कोट लिए खड़ी थी। इजाफा ने तन्हाई नागवारी से ये मनाजिर देखा था। उसने आज तक ऐसा सब फिल्मों या ड्रामों में ही देखा था और वो यही समझती थी कि ऐसा सब वही होता है, मगर आज अपनी आंखों से किसी अमीर कबीर आदमी की लाइफ देखकर उसकी आंखों में नापसंदीदगी के वाज़ेह तासर उभरे थे, जो उसकी जानिब पलटता हनात मुहतशम बासानी नोट कर पाया था। इजाफा अपनी ही सोचों में उलझी हनात को मुखातिब किए बिना एक ही जगह पर खड़ी रही थी। आज तक अपनी लाइफ में लिए गए किसी भी फैसले पर वो कभी नहीं पछताई थी, मगर इस वक्त उसे हनात मुस्तशिम की जॉब की ऑफर कबूल करने का अपना फैसला बहुत गलत लग रहा था, जिससे वो अब चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी। इजाफा सुल्तान, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा था। हनात कोट पहनकर अब पूरी तरह उसकी जाने मुतवज्जो हुआ था। उसकी मुलाजमीन उसके इशारे पर रूम से जा चुकी थी। सॉरी सर, आपको इनकार किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इजाफा को रूम में उसके साथ अकेले हो जाने के ख्याल से घबराहट होने लगी थी। गुड, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। हनाद उसके करीब आन खड़े होते बतूर उसके हुलिये का जायजा लेने लगा था। स्याह ढीले ढाले अबाए में पूरी तरह खुद को लपेटे वो किसी तरह भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए काबिल नहीं लगी थी, लेकिन उसका पर्पल हिजाब उसके चेहरे की दिलकशी में मजीद इजाफा कर रहा था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। हनाद मुस्तशिम की निगाहें कुछ पल के लिए उस पर अटक कर रह गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था, वरना हनाद मुस्तशिम को सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करके फेंकने की आदत थी। उसे कभी फर्क नहीं पड़ा था कि लड़की कौन है, क्या है। उसके मुताबिक लड़कियां सिर्फ हौस पूरी करने की चीज़ ही थी। उसकी अब तक जितनी पिए गुजरी थी सब उसके टॉप की लड़कियां थी। अगर वो लड़कियों के बारे में गलत सोच रखता था तो ये सोच अब तक उसके आसपास आने वाली लड़कियों ने ही बनाई थी, जो ब्लैंक चेक के बदले अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय, अपनी इज्जत व नमूस बेच देती थी। तो फिर वो क्यों ऐसी मखलूक की इज्जत करता जिनके लिए खुद से बढ़कर पैसा था। अजाफा के बारे में उसे यही बताया गया था कि वो भी एक लालची लड़की है, मगर अजाफा के इस लालच को वो गलत तराजू में तोल गया था। अजाफा को पैसों का लालच था, मगर अपने लिए नहीं। उसे अपने आसपास रहते बच्चों की आंखों में मंडलाते सपने पूरे करने की चाह थी, मगर किसी नाजायज तरीके से पैसा कमाने के बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो अपनी मेहनत का कमाना और खाना चाहती थी। चलो मेरे साथ। हनाद अगर चाहता तो अजाफा को यह बाया चेंज करके वैसे ही मगरबी ड्रेस पहनने पर मजबूर कर सकता था, जो वहाँ पार्टी में मौजूद हर दूसरी लड़की ने जेब तेन किया होना था, मगर वो अजाफा को ये दिखावा उससे खुद से ही ख़त्म करवाना चाहता था। उसके मुताबिक अजाफा ये सब उसकी तवज्जो अपनी जाने मुबलद करवाने के लिए ही कर रही थी, जैसे बाकी लड़कियां करती थी। हनाद उसकी जानिब से नजरें हटाता उसे अपने पीछे आने का इशारा करता रूम से निकल आया था। अजाफा फिर से उस सब सीढ़ियों का तस्वर करती मरे मरे कदमों से उसके पीछे गई थी, लेकिन हनाद सीढ़ियों वाले रास्ते की तरफ जाने की बजाय दूसरी जानिब मुड़ा था। अजाफा हैरान सी उसकी पैरवी कर रही थी। जब वो कॉर्टर से टर्न लेता वहां लगी लिफ्ट में दाखिल हुआ था, जो उसका गार्ड पहले ही खोले खड़ा था। घर के अंदर भी लिफ्ट अजाफा होने से बड़बड़ाई थी। उसका दिल चाह रहा था गार्ड की अच्छी खासी धुलाई कर दे, जो उसे इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ाकर लाया था। हनाद कुछ फासले पर वो लिफ्ट में आन खड़ी हुई थी। हनाद के वजूद से उठती खुशबू पूरी लिफ्ट में फैल चुकी थी। अजाफा बहुत मुश्किल से सांस रोके खड़ी थी। सर, ये कोई बिजनेस पार्टी है क्या? अजाफा जो कब से खामोश खड़ी थी, अचानक उसकी जबान में खुजली हुई थी। तुम्हें कोई मसला है? सवाल के जवाब में हनाद की खतरनाक देख अजाफा का सर खुद ब खुद नफी में हिला था। हद हो गई है, ये बंदा तो हर वक्त अंगारे ही चबाता रहता है। इसके घर वाले क्या करते होंगे? घर वाले? मगर मुझे इतने बड़े घर में सिवाय मुलाजमों की फौज के कोई घर वाला तो नजर आया ही नहीं। तो क्या ये बिगड़ा इंसान जो किसी जमाने में मेरा आइडियल था, ये इतने बड़े घर में अकेला रहता है? इजाफा दिल ही दिल में अंदाजे लगाने लगी थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी जबान को ब्रेक लगा रखी थी,
वाहबान एक साथ दोनों जगहों पर हमला करने का इरादा रखता था। उसने कर्नल शेर खान को कहकर मजीद एक टीम बुलवा ली थी, जिसने स्याह बंगले के तहखाने में जाकर दहशतगर्द को वहां से निकालना था, जबकि वो खुद उसी जंगल में जाने का इरादा रखता था जहां ज्यादा खतरा था और नाकामी के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि जंगल में बनाए खुफिया तहखाने तक तो वो पहुंच ही जाते, मगर असल मसला उसका दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड का था, जो पूरे नक्शे कई बार देख लेने के बावजूद उसे कहीं नहीं मिला था। वाहबान और उसकी टीम ने जंगल के उस हिस्से के को चारों तरफ से घेर लिया था। अब आगे बढ़कर अंदर दाखिल होने की बारी थी, जब जिसके लिए सबसे पहले वाहबान ही आगे बढ़ा था। उसके इशारे पर बाकी लोगों ने वहां आना था। मिट्टी और मस्नूई घास की भारी सतह हटाते वाहबान को अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच चुके थे। वाहबान अपने आदमी को अभी वहीं रहने का इशारा करते नीचे उतर चुका था, जहां मिट्टी से ही छोटी छोटी सीढ़ियां बनी गई थी। सीढ़ियां उतरता वो नीचे आन खड़ा हुआ था, जहां आगे से बहुत सारे डिजिटल लॉक्स और रॉड्स वाला एक दखली गेट नजर आया था। इसी बात का डर था उसे उसे आधी इन्फॉर्मेशन निशा ने दी थी, या फिर निशा को मालूम ही इतनी थी, वो फैसला नहीं कर पाया था। वो इतनी मदद करने के बावजूद निशा पर इंटरेस्ट नहीं करना चाहता था। अभी ये मुख्तलिफ कम्बाइश के लॉक थे जो खोलने की एक खास ट्रिक इन्हें सिखाई जाती थी। वाहबान ने वहां नजर आते तमाम नंबर्स को रिवर्स कर दिया था। ऐसा करते ही एक जोरदार अलार्म के साथ वो गेट खुलता चला गया था। अलार्म बजते ही अंदर बैठे गार्ड्स अलर्ट हुए थे। तब तक वाहबान के साथी भी नीचे उतर चुके थे। कुछ ही लम्हों में पूरा जंगल गोलियों की दहशतनाक आवाजों से गूंज उठा था। वाहबान जल्दी से अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ा था। उसे किसी भी सूरत उस फार्मर्स दहशतगर्द को अपने हाथ से जाने नहीं देना था। मगर अंदर मौजूद 3 कमरे उसने छान मारे थे, उसे वो कहीं नहीं मिला था। नक्शे में नीचे के सिर्फ ये 3 कमरे ही थे, इसके अलावा कहीं भी कोई निशानदही नहीं की गई थी। वाहबान यहाँ से किसी सूरत मायूस नहीं लौटना चाहता था। वो दरमियान वाले कमरे में खड़ा चारों तरफ गहरी नजरें दौड़ा रहा था, जब उसकी निगाह सामने वाली दीवार पर लगी छोटी सी पेंटिंग पर पड़ी थी। भला इस जगह पेंटिंग लगाने का क्या मकसद था? वाहबान जल्दी से आगे बढ़ता पूरी कुव्वत लगाते दीवार के साथ काई पेंटिंग हटा गया था, जिसके नीचे लगा छोटा सा बटन वाहबान की आंखों में चमक पैदा कर गया था। उसके बटन प्रेस करते ही बटन से 5 फुट के फासले से दीवार का थोड़ा सा हिस्सा खुद ब खुद अपनी जगह से सिरक गया था, जहां अंदरूनी हिस्से में उसे वो फार्मर बेहोश पड़ा नजर आया था। वाहबान की आंखों की चमक बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ उतरने से पहले उसे दूसरी टीम की कामयाबी का पैगाम वसूल हो चुका था। वो एक ही वक्त में 2 दहशतगर्द पकड़ चुका था। ये उसके लिए तन्हाई खुशी की बात होने के साथ साथ ब्लैक ईगल को हिलाने के लिए काफी थी। उसे होश में आते फार्मर को दोबारा बेहोश करते वो उसे लिए बाहर निकल आया था। उसके साथी पहले ही नीचे का बाकी हिस्सा क्लियर कर चुके थे। वहां से निकलकर जरा सा फासले पर आते वहां रखे बारूदी मवाद से वो उस तहखाने को तबाह कर गए थे। ब्लैक ईगल की करोड़ों की लागत और उसके साथियों की महीनों की मेहनत का मेजर वाहबान हातिम ने चंद पलों में राख बनाकर रख दिया था। हालात के हमरा वो एक फार्म हाउस पहुंची थी, जिसके बड़े से लॉन में पार्टी का सारा इंतजाम किया गया था। तकरीबन तमाम लोग ही पार्टी में पहुंच चुके थे। हालात के पहुंचते बाकायदा पार्टी का आगाज हुआ था। हर तरफ बजता बेहंगा म्यूजिक, नामुनासिब लिबास में मर्दों के शानों से लगी झूलती लड़कियां। तकरीबन हर मर्द के साथ कोई ना कोई लड़की लाजमी मौजूद थी, किसी की बीवी, गर्लफ्रेंड या फिर सेक्रेटरी के नाम में एक शो पीस। जाफा ने तो इर्द गिर्द का मनाजर देखते झुरझुरी लेकर रह गई थी। उसे कहीं से भी ये जगह इस्लामी रियासत का हिस्सा नहीं लगी थी। यहाँ के लोगों ने तो बेहूदगी में अंग्रेजों और यहूदियों को भी मात दे रखी थी। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि ये तमाम लोग मुसलमान घरानों की पैदावार थे। हालात के साथ उसे अंदर दाखिल होता देख बहुत से लोगों की नागवारियत और कोफ्त भरी नजरें उसके हुलिये की जानिब उठी थी। उन सब के बीच खुद को सर से पैर तक ढांपे वो कोई अजूबा ही मालूम हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने हुलिये पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। कम से कम इन हौस परस्त मर्दों की गंदी निगाहों से तो महफूज थी वो।
हनात के लिए वो वैसे भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, वो उसे यहाँ लाकर बिल्कुल भूल चुका था। अज़ाफ़ा एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठती हनात को ईद की तलाशने लगी थी, मगर उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आया था। अचानक जाने कहाँ चला गया था। अज़ाफ़ा को हैरत हुई थी। वो वहीं बैठी ईद के बदलते मनाजिर देख रही थी जब उसकी नज़र कुछ फासले पर पड़ी थी, जहाँ एक शख्स लड़की को ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लड़की रोते गिड़गिड़ाते उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का ड्रेस भी बाकी लड़कियों से काफ़ी मुनासिब था। लाउड म्यूजिक लगा होने की वजह से किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं था। अगर होता भी तब भी उसे बचाने किसी ने नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ सब ही एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। इजाफा कुछ लम्हों में ये सारा मामला समझ गई थी। वो लड़की भी उसकी तरह नहीं थी शायद, और बहुत गलत जगह फंस गई थी। वो शख्स उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाना चाहता था। इजाफा अपनी आंखों से किसी को मुश्किल में देखे और मदद ना कर पाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। अज़ाफ़ा यहाँ अपने अंदाज में उस घटिया शख्स की अक्ल ठिकाने नहीं लगा सकती थी, क्योंकि इर्द गिर्द खड़े गार्ड्स ने फिर उसे नहीं छोड़ना था। वो बिना किसी की नज़रों में आए उस लड़की की मदद करना चाहती थी, जो इस वक्त अपनी इज्जत खो जाने के डर से बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अज़ाफ़ा अपने बैग के खुफिया खाने में मौजूद थैले को खोलने लगी थी, जहाँ चाकू के अलावा मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे भी थे, जिनका वो सही जगह पर इस्तेमाल करना जानती थी। इजाफा स्प्रे की दो छोटी छोटी बॉटल्स लिए उन दोनों की तरफ बढ़ी थी, जहां वो नशे में धुत आदमी उस लड़की की तरफ तन्हाई नाजेबा हरकतें स्टार्ट कर चुका था, जिसे देख इजाफा को मजीद आग लगी थी। वो उन दोनों से जरा से फासले पर खड़ी होती, नामहसूस तरीके से उस लड़की को पर हाथ में पकड़ा तन्हाई बदबूदार स्प्रे खोल चुकी थी। उस स्प्रे की बदबू ऐसी थी जैसे कई दिनों से पड़े मुर्दे के जिस्म से आती थी। अज़ाफ़ा की हरकत पर उस लड़की ने हैरत से अज़ाफ़ा की जानिब देखा था। लड़कियों को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी आनी चाहिए। अज़ाफ़ा उसके हाथ में टिश्यू पकड़ाती वापस पलट आई थी। कुछ ही सेकंड में उस लड़की से इतनी बुरी बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना तो दूर, उसके पास खड़ा होना भी मुहाल हुआ था। वो आदमी जो पहले उससे ज़बरदस्ती कर रहा था, अब अपने हवास पर छाती ये तन्हाई गंदी बदबू की वजह से दूर हटा था। उस लड़की ने हैरत अंगेज तौर पर यह अमल देखा था। उसका ये बदबू भी इस वक्त बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने आज उसे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया था। पार्टी में फैलती उसकी स्मेल की वजह से उसे निकाल दिया गया था। यही वो लड़की चाहती थी। अज़ाफ़ा को कतई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कहते वो हनान मुहतशिम की नज़रों में आ जाएगी। वो जैसी ही उस लड़की पर स्प्रे डालकर पलटी थी, किसी ने तनाई हारजाना अंदाज में उसकी कमर में बाजू हाल करते करते उसे अपने साथ खींच लिया था। इस अचानक हुए हमले पर इजाफा के मुंह से चीख बरामद हुई थी, मगर वहां किसी को सुनाई नहीं दी थी। हनाद उसे दीवार के साथ पटकते उसकी जानिब झुका था। क्या था ये सब? हनाद ने उसकी कमर को सख्ती से दबोच रखा था। तकलीफ के एहसास से इजाफा की आंखों में नमी भर गई थी। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। इजाफा के आंसू गालों पर लखड़ा आए थे। वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस शख्स की बेरहमा गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी थी। तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सजा मिलेगी। अब तुम्हें उसी शख्स के पास जाना होगा। हनाद लाल आंखों से उसे घूरते बोला, जबकि उसकी बात पर अज़ाफ़ा ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था। वो उसे अब अच्छे इंसानों की कैटेगरी से बाहर निकाल चुकी थी, मगर हनाद मुहतशिम इतना घटिया शख्स होगा उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आपको अंदाज़ा भी है कि आप कितनी घटिया बात बोल रहे हैं? इजाफा कमर में होती शदीद तकलीफ की वजह से बामुश्किल बोल पाई थी। हनाद ने उसे जिस जगह से दबोच रखा था, वहाँ उससे बचपन में एक एक्सीडेंट में गहरी चोट आई थी, जहाँ अक्सर उससे इतना शदीद दर्द उठता था कि वो दर्द बर्दाश्त न कर पाते बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद इसका ऑपरेशन बताया था, जिसका खर्चा लाखों में था। इजाफा उस ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसने जिंदगी भर इसी दर्द के साथ रहने का सोचा था। पेन किलर लेने की वजह से पिछले 1 महीने से दर्द नहीं उठा था, मगर आज हनाद मुस्तशिम की बेरहमी ने अगली पिछली कसर पूरी कर दी थी। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। इजाफा के लफ्ज की वजह से हनाद की गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, जब मजीद दर्द बर्दाश्त न
कर पाते। इजाफा उसी की बाहों में झूल गई थी। हनात ने सहारा देकर उसे गिरने से बचाते उसका खतरनाक हद तक जर्द पड़ता चेहरा अपनी जानिब मोड़ा था। जो चेहरा कुछ देर पहले गुलाबियां छलकाता, हर तरफ की बनावट से पाक तन्हाई दिलकश लग रहा था, इस वक्त उसका यूं मुरझा जाना हनात को डिस्टर्ब सा कर गया था। उसके गार्ड इजाफा को उठाने करीब आए थे, मगर उनको इशारे से दूर रहने का कहते हनात खुद ही इजाफा को बाहों में उठाता वहां से निकल गया था। ये मनाजिर वहां मौजूद काफी लोगों के लिए हैरानकुन भी था। हनात मुस्तशिम को कब से ढकी छुपी लड़कियां अच्छी लगने लगी थी। निशी जान क्या हुआ है? मुलाजमा बता रही थी कि आप अपना रूम शिफ्ट कर रही हैं यहाँ से। समारा बेगम उसे अलमारी से अपने सारे कपड़े बाहर निकालते देख हैरत से उसके करीब आई थी। ये कमरा उसका पसंदीदा तरीन था। बहुत शौक और जिद से उसने ये लिया था, जिसके पीछे रीज़न उसका किसी की नज़रों में आए बगैर बआसानी यहाँ से टेरेस के रास्ते नीचे उतर जाना था, जिसको समारा बेगम ने उसकी पसंद समझा था। निशा ने हाथों के इशारे से अब इस रूम से भर जाने का बताया था, जब वजह वो नकाबपोश अजनबी शख्स था जो बिना किसी वजह किस्म की इजाज़त ज़रूरी समझे उसके रूम में दाखिल हो जाता था। निशा अपनी तरफ से उसकी बहुत बड़ी मदद कर चुकी थी और अब मजीद एक बार भी उससे टकराव नहीं चाहती थी। उस शख्स का भारी दिलकश लहजा और कसरती मजबूत वजूद निशा को अच्छा खासा मुतासिर कर चुका था। असल बात ही यही थी कि वो वहबान से ज़्यादा अपने दिल में पनपती अजीबो गरीब फीलिंग से घबरा रही थी और इसीलिए इस रूम से फरार भी चाहती थी। तो मेरी गुड़िया को अब कौन सा रूम चाहिए? मेरी जान इस बंगले के जिस कमरे में भी हाथ रखेगी वहीं मिलेगा। समारा बेगम उसके स्याह खुले बालों को मोहब्बत से समेटती बोली थी। उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट इसी बात का सबूत था कि अभी तक उसके दिए गए सबूतों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। निशा अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि उस अजनबी पर इतना ट्रस्ट करके उसने ठीक किया है या नहीं। समारा बेगम को अपना मतलूबा कमरा बताने के बाद वो वापस अपनी चीज़ें समेटने में मसरूफ़ हुई थी। मैं मुलाजमीन को कहकर वो कमरा अपनी गुड़िया के शहाने शान सेट करवा देती हूँ। समारा बेगम उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती वापस पलटी जब उसका मोबाइल फ़ोन बजा था। व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? समारा बेगम के चिल्लाने पर निशा के कान खड़े हुए थे, मगर वो मजीद कुछ बोले बगैर झंझलत में वहां से निकल गई थी। निशा सब कुछ वहीं छोड़ती रूम से निकल आई थी। समारा बेगम के रूम के बाहर खड़े होते आधे खुले दरवाजे से जो इतला उसे मिली थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसकी मेहनत रह नहीं गई थी और ना ही वो शख्स फ्रॉड निकला था। उसके अंदाजे के मुताबिक वो फोर्सेस का ही कोई आदमी था। 2 दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे। ये खबर शबीर खान पर क़यामत बनकर टूटी थी। स्याह बंगले में बिछे मातम को देखने के लिए वहाबान ने वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम आज फिर ऑन करके रखा था, जहाँ हर बंदे के चेहरे पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। आने वाला वक्त उनके साथ क्या करने वाला था, शबीर खान वो सोचकर ही जी जान से लहज उठा था। समारा बेगम के दिल में भी निशा को लेकर एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। ब्लैक ईगल उनको सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी तो पहले ही नज़र थी निशा पर। ये सारी सोचें उसकी सांसें रोके हुए थी, जबकि वहाँ दूसरी जानिब अनिशा अपने ऊपर मंडलाते खतरे से अनजान बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन से उसके मुल्क की आवाम बहुत बड़े नुकसान से काफ़ी हद तक महफूज हो चुकी थी। और उसे इस बात की भी खुशी थी कि रूम शिफ्ट करके उस नकाबपोश से भी उसने खुद को अब बचा लिया है। वो दोबारा अब उसके करीब नहीं आ पाएगा और ना ही वो खुद उसके हवाले से कुछ उल्टा सीधा सोचेगी। मगर हर मामले में जहानत और समझदारी का मुजाहरा करने वाली इस मामले में मेजर वहबान हातम को मौत नहीं दे पाई थी। वहबान जो निशा का कमरा खाली देखकर लम्हे भर को परेशान हुआ था, बेचैनी से अगले ही पल तमाम कमरों के कैमरे ऑन करते एक एक कमरा चेक करने लगा था। जब उसे एक कमरे में वो हसीन दशीरा मिरर के सामने खड़ी अपने खुले बालों को झटकती नजर आई थी। शबीर खान की आज फिर ब्लैक ईगल के सामने पेशी थी। जितना बड़ा नुकसान वो ब्लैक ईगल को करवा चुका था, उसके बाद उसे मौत के सिवा किसी बात की उम्मीद नहीं थी। ब्लैक ईगल अपने आदमियों की नादानी में भी की गई ये गलती तक माफ नहीं करता था।
शबीर खान को तो फिर दो दो मौके मिल चुके थे, अब उसका बचना नामुमकिन था। ब्लैक ईगल से फरार होना अपनी मौत को मजीद इबरतनाक बनाना था। उसके पास अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय किसी मुआवजे के हो जाने के इंतजार में। वो मुर्दा कदमों से अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सामने ही वो अपनी मखसूस तख्त पर वो वहशतनाक तासर के साथ बरजबान नजर आया था। शबीर खान आज तक कभी किसी की आंखों में ऐसे बर्फीले तासर नहीं देखे थे, जैसे हर बार ब्लैक ईगल के सामने जाते उसे महसूस होते थे। तुम्हारी पिछली बार की नाअहली के बावजूद मैंने तुम्हें मौका दिया, मगर इस बार भी तुम बहुत बुरी तरह फेल हुए। ब्लैक ईगल की सुनसुनाती आवाज उसके कानों से टकराई थी। मैं अपनी सजा पाने के लिए तैयार हूँ, शबीर खान मरी मरी आवाज में बोला था। मौत उसके सर पर मंडला रही थी। इससे ज्यादा खौफजदा कर देने वाला और कौन सा एहसास हो सकता था। तो मरने के लिए तैयार हो तुम। ब्लैक ईगल अपना मखसूस हथियार हाथ में पकड़े उसकी जानिब बढ़ा था। उसका कीलो भरा तेजधार खंजर देख शबीर खान को अभी से अपनी रूह फना महसूस हुई थी। ब्लैक ईगल उसकी जद पड़ती रंगत पर कहका लगा था, उसकी गर्दन पर खंजर रख चुका था। हाथों में अपना पसंदीदा खंजर पकड़ने के बावजूद पहली बार किसी को मारने को दिल नहीं चाह रहा था। शबीर खान की गर्दन पर रखे खंजर के साथ जुड़े कील इतने नुकीले थे कि शबीर खान को तकलीफ सी अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। जब उसकी गर्दन में उतरता तो क्या होता, ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी थी। तो लेकिन ब्लैक ईगल के कहे जाने वाले लफ्ज उसके मुर्दा होते वजूद में उम्मीद की किरण जगा गए थे। क्या मतलब बॉस, मैं समझा नहीं। शबीर खान ने गर्दन पर होती अजियत बर्दाश्त करते बामुश्किल पूछा था, तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। ब्लैक ईगल की बात पर शबीर खान ने बेयकीनी से उसे देखा था। ब्लैक ईगल ने उसे माफ़ कर रहा था। काम छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता था। कैसा काम? शबीर खान इस अचानक रनुमा होने वाले मुआवजे से फ़ायदा उठाना चाहता था। अपनी भांजी को हमेशा हमेशा के लिए मेरे हवाले करना होगा। ब्लैक ईगल के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ शबीर खान को सुन कर गए थे। बागबान की नजर उसके सिल्की स्याह बालों पर ठहर सी गई थी। घनी लंबी घटाएं उसके नाजुक वजूद को पूरी तरह ढांपे हुए थी। बागबान ने फौरन स्क्रीन चेंज कर दी थी। ये गलत था। यूं बिना इजाजत किसी गैर लड़की को देखना उसके मुताबिक तन्हाई गैर इखलाकी हरकत थी। मगर जाने क्यों आज उसका दिल उससे बगावत कर गया था। अपने दिल के बदलते जज्बात पर घबराता वो वहां से उठ आया था। निशा यामीन ने उसकी बहुत मदद की थी। अगर इतनी जल्दी उसे ये सारे सबूत ना मिलते तो किसी बड़ी तबाही का होना मुंतविक था। वहबान निशा के हवाले से सब कुछ जानना चाहता था। ये लड़की कौन थी और इसका शबीर खान से क्या बाकी यही रिश्ता था जो दुनिया के सामने लाया गया था, या इसके अलावा भी कोई हकीकत थी? अगर वो लड़की वहाँ किसी मुश्किल में थी तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी। इन्हीं सोचों के साथ वहबान गाड़ी ड्राइवर करता घर पहुंचा था। वो देखे वहबान आ गया, आप इसी को ही डायरेक्ट ही ये तस्वीरें दिखाकर पसंद करवा लें। वहबान को इंटर होता देख शमा बेगम ने अपनी सास की तवज्जो उसकी जानिब दिलाई थी। ये आप सबको मेरी शादी के अलावा कोई बात नहीं सूझती क्या? बाकी भी तो ये इतने सारे कवारे फिर रहे हैं, इन्हें पकड़े जो बिगड़ रहे हैं। मैं बेचारा तो फिर सुधरा हुआ हूँ। वहबान बारी बारी माँ और दादी के माथे का भूसा लेता उनके करीब आन बैठा था। आज उसका मूड अच्छा था, इसीलिए वो रिश्ते वाली बात पर चिड़े बगैर मुस्कुराते हुए बोला था, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। उसकी बात पर वहां बैठे आसम और खजर को उस पर बेहद प्यार आया था। जैंगम की कर दी शादी बहुत है, इन बाकी सब की तुम्हारी शादी के बाद होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जीनत बेगम ने उन दोनों की बातें खिलते देख उनकी खुशी को वहीं ब्रेक लगा दी थी। वहां बैठी अरूज और नूर मुंह नीचे करती बहुत मुश्किल से अपनी बेसाख अमड़ आने वाली हंसी कंट्रोल कर पाई थी। वहबान भाई बड़ों को डर है कि आप फिर ना कहीं वापस चले जाएं, इसलिए वो आपकी लगामें यही किसी हसीन दुशीरा के साथ बांध देना चाहते हैं ताकि आप यहाँ से किसी सूरत ना जा सकें। अरूज की बात पर वहबान ने माँ और दादी की जानिब देखा था। मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। वहबान ने खफकी भरी नजरों से इन सबको घूरा था। बाकी सब भी वहां आकर बैठ रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब घर पर ही थे। तो फिर शादी क्यों नहीं करते? कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं बिल्कुल वैसी ढूंढ लाऊंगी। मैं अपने इकलौते बेटे
बिल्कुल वैसी ढूँढ लाऊँगी। मैं अपने इकलौते बेटे का घर बसता देखना चाहती हूँ, मुझे एक प्यारी सी बहू चाहिए। सैमा बेगम ने उसे हर तरफ से घेरना चाहा था। बाबा ने बेचारगी भरी नज़रों से उन सबको देखा था जो पूरा फ़ोकस उसी पर रखे हुए थी। लेकिन जब मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं तो मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूँ? एक दिन की बात तो नहीं होती ना ये। पूरी ज़िंदगी के लिए किसी को अपने करीब झेलना, अपनी हर शय पर उसे बराबर का इख्तियार देना कितना मुश्किल काम है। और आप सब जानते हैं मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना, किसी का अपने मामलात में इंटरफेयर करना कितना सख्त नापसंद है। मैं भला कैसे सरवाइव कर पाऊँगा इस रिश्ते में? वहबान ने उन सबको अपनी उलझनें बताई थी, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बेटा जी, जब ये रिश्ता कायम होता है ना तो ये सब उलझनें खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। और रही बात पसंद की, तो ये देखो शहर की खूबसूरत तरीन और सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़कियों की तस्वीरें मंगाई हैं मैंने। सब बहुत अच्छी फैमिली से हैं, हमारी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट हो सकती हैं। जीनत बेगम ने उसकी जानिब तस्वीरें भरा एनवलप बढ़ाते उन लड़कियों की तमाम खूबियाँ गंवाई थी। वहबान तो एनवलप को देख कर रह गया था और बिना खोले साइड टेबल पर रख दिया था। वहबान मैंने ये रखने के लिए नहीं देखने के लिए दिया है। जीनत बेगम नाराज़गी से गोया हुई थी। बाबान प्लीज़ देख तो लें, क्या पता कोई खुशकिस्मत लड़की पसंद आ जाए आपको। बाकी सब के भी पुरजोर सरार पर नाचाते हुए भी बाबान को वो एनवलप खोलना पड़ा था, इस यकीन के साथ कि उसे कोई एक लड़की भी पसंद नहीं आने वाली थी। बाबान मेकअप से लटी फटी उन लड़कियों की एक एक करके तस्वीरें देख रहा था, जब बाकी सब उसकी जानिब देखते सांस रोके हुए थे। जीनत बेगम ने बहुत मेहनत से ये सारी तस्वीरें इकट्ठी की थी। इन्हें पूरा यकीन था वहबान को कोई लड़की तो पसंद ज़रूर आएगी। वहबान ने गहरी नज़र घुमाकर उन सब की जानिब देखा था। उस सब के तासर पर उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि उसको एक एक करके तस्वीरें उठाकर टेबल पर डालते देख वो समझ गए थे वहबान को कोई पसंद नहीं आ रही। मगर अगले ही लम्हे तस्वीर टेबल पर रखने के बाद वहबान की नज़र जैसे ही अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर पर पड़ी, हकीकत में उसके 14 तबक रोशन हुए थे। सुनहरी हसीन उदास आंखें, दिलकशी भरे पुरकशिश नकूश चांदनी जैसी चमकती दुधिया रंगत और चेहरे पर सजी मीठी सी मुस्कुराहट। स्याह स्कार्फ के आले में उसके चेहरे की गुलाबियाँ मजीद निखर कर आ रही थी। इन तस्वीरों में ये पहली ऐसी लड़की थी जिसने सर पर दुपट्टा ले रखा था। वहबान को लम्हा भर को लगा था ये लड़की उसके तस्वर से निकलकर यहाँ आन बसी हो। उसने 2-3 बार पलकें झपकाकर तस्वीर की जानिब देखा था, मगर वो वही थी, ये उसकी नज़रों का धोखा नहीं था। जबकि बाकी सब दम सदे वहबान को एक ही लड़की की तस्वीर को इतनी देर से घूरता देख रहे थे, जिसका एहसास होते ही वहबान ने फौरन उस तस्वीर को बाकी तस्वीरों के साथ टेबल पर पटक दिया था। सबकी नज़रों को फोकस अब उस तस्वीर की जानिब गया था। मुझे थकन हो रही है, मैं रेस्ट करने रूम में जा रहा हूँ। वहबान बाकी की तस्वीरें भी निशा की तस्वीरों के ऊपर पटकता वहां से उठ गया था। उसका दिमाग घूम चुका था, निशा की तस्वीर उसके घर में कैसे आ सकती थी। वाह दादी जान, देखे ना, भाई की चॉइस तो बहुत अच्छी है। कौन है ये लड़की, क्या नाम है इसका? भाई इतनी आसानी से मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं लिख कर देती हूँ, नहीं ये लड़की पसंद आ चुकी है। कैसे इतनी देर यकटक देखते रहे उसे, जबकि बाकी तस्वीरों को टेबल पर पटकने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। अरूज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जबकि बाकी सब का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। निशा नाम है इस लड़की का, शायद अब तो मिलना पड़ेगा इसके घर वालों से। सैमा बेगम के चेहरे पर भी खुशगवार मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इन्हें खुद ये लड़की पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी और अब तो उनके बेटे को भी पसंद आ चुकी थी। इस लड़की की अहमियत और चाह इनके नज़दीक मज़ीद बढ़ गई थी।